Guys, I'm back after a long time. We are trying to do a live session with Spidey Bhai, and we will discuss a certain amount of topics. These will be basic topics, uh, geopolitics, normal things, and related to day-to-day things and issues. Basically, this is a social issue talk type situation. We try to talk about social issues and messages. So first of all, the important question is, am I audible or not? Yes, Tasky, I am doing a kind of social media detox because social media can be a very toxic place. Social media can be a place like uh, क्या करना है आईपीएल फाइनल से जीतना तो पहले ही फिक्स होता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट ओके ओके मैं बैकअप कर लूँगा दिस विल बी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब एंड आई विल ऑल्सो अपलोड इट ऑन आई जी टी वी सो that is not an issue but the point is that social media can be a place which is very toxic. The environment is very toxic and it takes a toll on your body. You can be the best person and still uh, you will be at times not feel better or you will be feeling pathetic on social media. So I feel that from time to time we should do a detox or something. So that is why I'm not online much these days, but I'll join you guys in few days. So Abhi, we are waiting for my brother Spidey. We are going to discuss a variety of topics and we are going to discuss a lot of things, social things and all, and what we feel about it. It is not necessarily the best mentality, but it is something that we feel. So we just simply discuss that. I'll just call Spidey. I will just invite him. I will gladly add stripping lip Vandus ek din, but the person who is running the page needs to talk to me now. Pehle ki we will do a live session. I'll gladly do a session with you. I am not. I did not know that you are very comfortable on a live session, so I never asked you. But if you wish to join someday, we'll do a live session for sure. That is going to be a best thing because people need your views. That is a very good page. So if anyone wants to check the post, go to the page. वो उठाना पड़ता है यार कमेंट्स दिखाने के लिए. अब कमेंट्स विजिबल होंगे. द लाइव का ये अपडेट बहुत गंदा आया है. आई एम जस्ट ट्राइंग द लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द अपडेट. सो दिस इज पथेटिक एज अ अपडेट बट विल डू अ लाइव सेशन सून भाई. अब देखते हैं कब होता है ये. You mean the person who claims कि इंडिया के 1500 किलोमीटर अंदर चाइना आ चुका है. अजय अजय शुक्ला का कुछ और निकनेम बोलता हूँ मैं. आई विल नॉट से इट बट ही इज नॉट a respectable journalist or something. He's not a very respectable person. Most of the defense community knows about him, but he likes to make a lot of claims. So that is Mr. Ajay Shukla ji. So that is a bit about him. ज़्यादा पसंद नहीं करते लोगों ने डिफेंस कम्युनिटी में बिकॉज ही मेक्स अ लॉट ऑफ क्लेम्स. अभी बीच में उन्होंने क्लेम किया था कि चाइनीज कैंप्स 40 किलोमीटर दूर आ चुके हैं अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दैट इज ऑल बुलशिट. सो बाकी लोग भी हैं जो करते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड ऑल. सो दे नो दैट अजय शुक्ला इज नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स और समथिंग बट ही इज अ कर्नल. सो वो अपनी यूनिफॉर्म का यूज करते हैं एंड लोगों को लगता है कि इफ ही इज अ कर्नल एंड ही इज अ टेक एंड ही इज अ पर्सन हु वाज रिलेटेड टू आर्मी तो उनके व्यूज काफी सही होंगे. ऐसा होता नहीं है हमेशा. सो इट इज बेसिकली समथिंग. एच एस पनांग भी वही हैं. एक प्रवीण सैनी भी सर वही हैं. प्रवीण सर के तो फैन बेस मैक्सिमम पाकिस्तानी है एंड ही लाइक्स टू शो कि मैं वीकनेस दिखाता हूँ इसलिए मुझे पाकिस्तान वाले एडमायर करते हैं. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. उनका अपना ऑडियंस बहुत डेडिकेटेड है एक जगह से. सो दैट इज अबाउट दीज गाइज. ओके भाई इज हियर सो आई विल ऐड हिम एंड स्ट्रिपिंग भाई को भी अभी कभी ऐड करेंगे. देखते हैं जिस दिन पॉसिबल होता है. हेलो भाई, हाउ आर ये यू? चैंपियन कैसे हितेश भाई। बस बढ़िया बढ़िया. आप बताओ कैसा चल रहा है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये अजीब सा आ रहा है इंस्टा इस बार कुछ ये बहुत फीचर हुआ गंदा क्या अपडेट अपडेट आया इसका। है. बहुत गंदा अपडेट आया है. बहुत ज्यादा गंदा ये तो अपडेट है. हाँ, इसमें बार बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है. अजीब सा दिख रहा हूँ मतलब
ऐसा लग रहा है आपको अलग टीवी में देख रहा हूँ, अपने आप को अलग टीवी में। हाँ, और वो अलग कमेंट्स अलग भी आ रहे हैं स्क्रीन्स इतने हो गई हैं। छोटे से हिस्से में। पहले पूरे अगर कमेंट्स आते थे। कमेंट्स, आप दिख रहे हैं कमेंट्स? हाँ कमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन एक बार में एक सॉकेट दिखता है, एक ब्लॉक, फिर दूसरा नहीं वो दिखता है। नीचे से एक एरो टाइप का है, उसे दबाना पड़ेगा तब द कमेंट स्क्रीन गोज अप। ट्राई करना एक अरे बार। तो पूरी कमेंट दिखती है, फिर हम नहीं दिखते फिर। वो वही इशू है, वही इशू है, वही इशू है। इंस्टा मतलब ये माँ का जब बस चले तो इसे खत्म करके ही फेसबुक में लाइव होगी, फिर हम लोग इसके बाद कुछ बचा नहीं है। टिकटॉक बना अरे दिया अरे उसने अरे भाई पूरे से। हम्म। अरे बड़ा कष्ट है ये तो। कोई बात नहीं, अब हम बहुत कष्ट कमेंट है। अब थोड़ा कम देख पाएंगे। हाँ, तो वही इशू है, कमेंट कम देख पाएंगे, अब कोई वरना बात खुद को नहीं, नहीं देख वैसे भी पाएंगे। हम बस चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हो, जो भी हम बात करने वाले हों, उसको समझें। और अगर कुछ सीखने लायक हो तो प्लीज उसे अपने दोस्तों के बीच भी फैलाएं, है ना। एक वेव बनाए वही पॉजिटिविटी। वही। तो हितेश भाई, कैसा रहा आपका दिन? एवरीथिंग गुड? यस यस, एवरीथिंग इज गुड। बस वही था, सोशल मीडिया से थोड़ा डिटॉक्स कर रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया टॉक्सिक हो जाता है and किसी के लिए भी हो जाता है। यू कैन बी द परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लेकिन सोशल मीडिया में आओगे तो दिमाग में वो गंदगी आने लग जाती है, बिकॉज आपकी बहुत किस ज्यादा तरह लाइफ की वर्चुअल हो गंदगी? जाती है, तो इस चक्कर में वो हर टाइप की गंदगी, जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो मैनिपुलेशन अच्छा होता अच्छा है, तो अच्छा। उस चीज से आपको एक रिलीफ चाहिए होता है, आई बिलीव, टाइम टू टाइम। आई अंडरस्टैंड, मैं बस आपकी टांग खींच रहा था। हाँ, मैं समझ गया था। वेरी नाइस हितेश भाई। तो हितेश भाई, जैसे आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक है, हमने प्लान किया था कल कि हम डिस्कस करेंगे। हम्म। लेकिन हितेश डिस्कस भाई, ज्यादा हुआ एनी नहीं। कुछ, हाँ, कि हम्म। रिजर्वेशन in private sector, not based upon the criteria as per the constitution, but based upon locality, outsider and insider. जोन जोन बेस्ड रिजर्वेशन। हाँ, तो हमारा हाँ। तो ये टॉपिक था कि क्या प्राइवेट सेक्टर में जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% रिजर्वेशन दिया है, ये कहां तक उचित है। ये हमारा टॉपिक हमने कल डिसाइड किया था। यस यस, हमने कल हम डिसाइड किया था। हाँ, तो मैं दर्शकों को यहाँ बता दूं कि बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक गाइस, पहली बात तो आप अपनी जाति जो है और अपनी अपनी स्टेट, अपनी लैंग्वेज, इसको लाइव के बाहर छोड़ के आइएगा। यहाँ एज ए इंडियन इस वीडियो को देखिएगा जो हम और हितेश भाई आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना हितेश भाई। ये पहली हाँ रिक्वेस्ट हाँ। है। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे है कि नेताओं को आप, पहली बात तो नेताओं से, किसी से भी, नेता, इंडियन आर्मी, रॉ, एनटीआरओ, आईबी, ये आपको जस्टिस और ट्रूथ प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। Every organization has its interest and its objective. Now that interest and objective can be based upon some false notion. The only interest what matters is organizational interest, not your truth, justice. हमने क्या सही किया है, पाकिस्तान ने क्या सही किया था, उससे इंडिया को लेना देना नहीं है। रॉ का काम है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। आईबी का काम है इंटरनल सिक्योरिटी। इस इंटरनल सिक्योरिटी में अगर किसी गलत इंसान की पॉकेट मारनी पड़े तो पॉकेट मारेंगे। किसी विदेश के नेता को बॉम्ब ब्लास्ट में मरवाना पड़े तो मरवाएंगे। काश। ये किसी भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का ऐसे ही काम होता है। तो आप जस्टिस और ट्रूथ के बेसिस पे भागिए मत इनके पीछे। वी एज अ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट, वी एज अ नेशन एग्जिस्ट फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट। इसमें ट्रूथ, राइट। जस्टिस, इन सब जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि। नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर शेयर मार्केट गिराने हो तो शेयर मार्केट गिरेंगे। उससे अगर लोग आत्महत्या करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो गरीब हो गए। ज्यादा गलत या कम गलत, इनमें से हमें एक ऑप्शन चुनना पड़ता है, ठीक है। ज्यादा सही या कम सही, इसमें से हमें एक ऑप्शन चुनना पड़ता है ना हितेश भाई। आप हाँ, जिंदगी में द भी लेसर देखेंगे, इवल। जिंदगी में देखेंगे कि एक जगह आपकी गर्लफ्रेंड पहाड़ से गिर रही हो और मां पहाड़ से गिर रही हो, तो यू हैव टू टेक अ कॉल। यू हैव टू टेक अ कॉल कि गर्लफ्रेंड को बचाऊं कि मां को बचाऊं, डिसीजंस। है ना। तो उनमें से एक इंसान तो गिरेगा ही, ठीक है। तो पूरी दुनिया इज अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड, इट्स टोटली ग्रे। तो सही और गलत के पैमाने पे मत देखिए। क्या जरूरी है
राष्ट्र के हित में, इसको हमें देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है हितेश भाई कि राष्ट्र हित में हमसे कुछ गलतियां हो जाए, है ना, राष्ट्र होती है, हित में हमने किसी ऑब्वियसली। का नुकसान कर दिया, लेकिन भाई राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो राष्ट्र हित को मानना हमारा सबसे पहला काम है। और ये जितने इंटरनेशनल मीडिया है जो ट्रूथ और जस्टिस की मांग करते हैं, देखिए गलत ट्रूथ गलत जस्टिस हमें नहीं चाहिए, हमें इनफैक्ट सही बात। सही जस्टिस और सही फॉल्स चाहिए। अगर देश का हित झूठ में है, देश का हित अगर इनजस्टिस में है कुछ लोगों के लिए, तो इनजस्टिस है सही। तो इसको फंडामेंटल्स को आप समझ लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल में देखता हूं क्या करते हैं, ट्रुथ, मैं ट्रुथ के साथ हूं, तुम अपना डेटा बताओ कि तुमने कहां पे गोलीबारी की पाकिस्तान में, डेटा बताओ। तो देखिए और डेटा ऐसा, बताओ तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ नहीं मानूंगा, ऐसे ट्रूथ नहीं चाहिए हमें। याद रखिए हमेशा, ये आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं कि हम सत्य के साथ हैं। आप कहिए हाँ तुम सत्य के साथ रहो, हम देश के साथ हैं, हमें नहीं चाहिए सत्य। अपना आधा सत्य, हमें आधा सत्य होता है उनका वो। नहीं नहीं, उनका होगा, हाँ उनका होगा, उनका वो सत्य होगा जिससे देश को नुकसान हो, वो सत्य के हाँ पीछे जरूर वो। जाएंगे। वो मानवता, मैं जानता हूं जब सीएए जैसे चीजें आई थी तो मानव, जैसे रोहिंग्या, रोहिंग्या का इश्यू, अगर मैं एक मानवता के दृष्टिकोण से बनाना शुरू करूं तो आराम से नैरेटिव बना सकता हूं मैं। किसी भी इश्यू को का नैरेटिव बनाना, ऑल बहुत इट्स आसान नीड्स होता है। इंग्लिश, सही भाषा का प्रयोग करके मैं किसी भी चीज को मानवता का रूप दे सकता हूं। अगर आप मानवता के पैमाने पे चेक करें तो आईएसआईएस के आतंकवादियों को भी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, नहीं सद्दाम नहीं, वो हुसैन तो को वही। फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप मानवता की चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे तब तो भैया हम सब गलत काम ही कर रहे हैं। ठीक है। सद्दाम हुसैन एक्चुअली थोड़ा अच्छा आदमी था, मतलब मैं हाँ जिस वही मैं कह रहा हूँ, लॉजिक से देखता हूँ, बिकॉज उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म को काफी कंट्रोल किया था। सद्दाम ये हुसैन वाज सही कह वेरी रहे हैं, वेरी नेशनलिस्ट, और वेरी सही वेरी मायने ट्रू। में यूएस ने अपना नेशनलिज्म को सद्दाम हुसैन के नेशनलिज्म के ऊपर रखा। तो दैट वाज अ थिंग। भाई मैं लोगों को बता रहा हूँ हितेश भाई, सत्य और असत्य के पीछे मत भागे। सद्दाम हुसैन ने कहा कि भाड़ में जाए सब, मुझे राष्ट्रहित सर्वोपरि है। वो जैसा भी सर्वोपरि है। इंसान था उसके लिए राष्ट्रहित सबसे बड़ा था। उसके लिए इस्लाम, मुस्लिम ब्रदरहुड, राइट नहीं था, विंग, ये सब नहीं कुछ था, नहीं नहीं था, था। है ना। वो देश को सबसे पहले मानता था, चाहे किसी का नुकसान उसे करना पड़े। ठीक है। तो आपको एक कॉल लेनी है, देखिए है ना हितेश भाई, आपको कॉल लेनी है कि आपको बनना क्या है। आपकी आइडियोलॉजी अगर हम्म। कम्युनिस्ट है तो ठीक है, आप अपनी आइडियोलॉजी पर ईमानदार रहें, आपके लिए देश मैटर नहीं करता है, आइडियोलॉजी मैटर करती है, तो वही सही है, क्या कर सकते हैं। भाई विश्व में राक्षसों की भी तो जगह होनी चाहिए ना, राक्षसों की, पाखंडियों की, चोरों की, डकैतों की, सबका अपना अपना काम होता है। हम बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हितेश भाई कि समाज जो है सिर्फ अच्छे लोगों से चले, तो गलत लोग तो रहेंगे ही। तो आप अपना ऑब्वियसली। पोल डिसाइड कर लीजिए, आप किस तरफ हैं, आप देश की हम्म। तरफ हैं या देश के खिलाफ हैं। अगर आप देश के खिलाफ हैं तो आपका सच मेरे लिए मैटर नहीं करता है, एज सिंपल एज दैट। अगर आप देश के साथ हैं तो आपका झूठ भी मेरे लिए मैटर करता है। अगर आपने कोई गलत चीज को देखकर अनदेखा भी कर दिया जिससे देश का नुकसान हो सकता था, तो आप मेरे लिए देशभक्त हैं। और अगर आप माओवादियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि सीआरपीएफ को हटाओ, है ना, अगर आप माओवादियों के मरने पे जनाजे निकालते हैं लेकिन सीआरपीएफ के मरने पे अगर आप खुश होते हैं, तो भैया हमें ऐसी मानवता नहीं चाहिए और हम आपका समर्थन नहीं करते। तो यहीं से हितेश भाई अपना लाइव शुरू करेंगे, है ना, इस पीजुरिस के साथ कि सच और गलत नहीं, क्या अदाई भी करनी पड़े हितेश भाई, है ना। तो जैसे आप हम वर्ल्ड वॉर जरूर, टू लीजिए, वर्ल्ड वॉर टू हाँ का नेगेटिव में हम हमेशा पढ़ाते कि जर्मनी ने बहुत गलत किया और ब्रिटिशर्स और यूएस बहुत बड़ा हीरो था। ये थ्योरी एग्जैक्ट, बहुत पढ़ाई गई क्योंकि ये पढ़ाया गया। अब ब्रिटिशर्स, जर्मनी ने 6 मिलियन जूस मारे तो हॉलोकॉस्ट हो गया, सही है, हॉलोकॉस्ट कह दिया और बहुत बड़ा पाप हो गया। विंस्टन चर्चिल ने 4 मिलियन इंडियंस को भूखमरी में मार दिया, बंगाल फमाइन में। तो उसे एग्जैक्टली, कोई किसी ने जज नहीं किया। जापान ने चाइना पे अटैक किया तो वो गलत था, और जापान ने पर्ल हार्बर किया वो गलत था, लेकिन अमेरिका ने सिविलियन पॉपुलेशन को न्यूक कर दिया 2 बार, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब सिविलियन पॉपुलेशन पे गिराए, एंड दैट इज एग्जैक्ट, कंसिडर्ड अ गुड थिंग बिकॉज इट एंडेड अ वॉर। दिस इज अ हिपोक्रिटिकल स्टैंड, मतलब आप एक वे से एनालाइज करोगे अगर अपने ही व्यू से, तो वो थोड़ा गलत व्यू पॉइंट बनता है। आपको अगर ह्यूमैनिटी की बात करनी है तो दोनों पर्सपेक्टिव होने चाहिए, राइट।
आप अपना अब पर्सपेक्टिव एक टेररिज्म को exactly, जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट? सो वो सही थोड़ा एक बात। इशू है। हम्म। अब बताइए हितेश भाई, जो भी यूएस वाला होगा, वो अगर यूएस की पॉलिसी पे उंगली उठाने लगे कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुमने तो लाखों बेगुनाहों को मारा था पर्ल हार्बर के अटैक के बाद, जापान पे तुमने बॉम्ब गिराया, तो भाई उसको हम अच्छा इंसान कहें, लेकिन हम उसको एंटी नेशनल जरूर कहेंगे। तो देखिए, आप एंटी जापानीज नेशनल, व्यू से, हाँ। हाँ, जापानीज व्यू से आप उसे अच्छा कहेंगे, भाई यूएस वाले उसको एंटी नेशनल बोलेंगे। अगर हम्म। आप जापान, है ना, अगर आप जापान के लिए रोएंगे यूएस के होके, तो तो हम वो आपको, उनके लिए गलत है। उनके लिए गलत है। तो एज सिंपल एज हाँ, दैट, आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, देशभक्त बनना चाहते हैं, चुन लीजिए। वही। देशभक्त और कई बार आपको, जैसे हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन हमारा काम नहीं उसको दिखाना है यार, नहीं, हम अच्छे इंडियन नहीं साइड किया पे। उन्होंने, लेकिन बात यही है, आप देखो कि अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन बनना है तो दोनों साइड का ह्यूमैनिटेरियन व्यूज लेके चलो, एक साइड का लेके मत चलो कि बस तुमने ही ह्यूमैनिटेरियन कर दिए हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और हम्म, वार जब होती है तो दोनों साइड से इवल्स होता है, ऑब्वियसली दैट इज अ थिंग। रॉ ने अपने स्पाइस भेजे हैं, ऑब्वियसली भेजे हैं, दैट इज द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन आर्मी में एग्जैक्टली, आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप भी लोगों का खून करोगे, बिकॉज वो टेररिस्ट है एंड ही इज गोइंग टू किल अदर पीपल इफ यू डोंट किल हिम। सो एग्जैक्टली, दैट इज अ माइंडसेट। आपको लेसर इवल हमेशा चूज करना पड़ता है अपनी लाइफ में, आप चाहो या ना चाहो। और आइडियलिस्टिक मत बनो, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। केविन मिनाटी ने एक चीज बोली थी, जिसको याद होगा वो हाँ, समझ जाए। हाँ, तो एग्जैक्टली, आपको सोचना पड़ता है कि आप किस साइड होने वाले हो दीवार के। अभी कम्युनिस्ट में जो साथ के हैं, उनके पास अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास हम्म, हर साल आईफोन देने का पैसा है, और वो बातें करते हैं अंबानी का पैसा बांटने की। तो हम्म, भैया स्टार्टिंग अपने घर से कीजिए, पहले अपने पिताजी से बोलिए अपनी जायदाद के टुकड़े करें, ताकि पहले आप स्टार्ट करो, फिर आप अंबानी को ज्ञान दो ना कि अंबानी देख मैंने अपनी प्रॉपर्टी बांट दी, हाँ, अब तू अपनी खुद प्रॉपर्टी खुद बांट। तो खुद कहाँ हाँ, से स्टार्ट करेंगे, खुद नहीं करेंगे ना। दुनिया हम्म, नहीं, सी, आप आज गरीब हो सकते हैं, लेकिन आपसे गरीब कोई होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी का भी डिवीजन उस गरीब को मिलना चाहिए, अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो। फर्स्ट हम्म, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट, जो भी तुम हो, तुम्हारी मर्जी। तो डू नॉट से कि करेक्ट, अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा पैसा है किसी और के कंपैरिजन में। ट्रू, भलाई अपने घर से स्टार्ट कीजिए पहले, अपने पैसा बांटो, उसके बाद दूसरे का बांटने की बातें करना। ट्रू, हम्म। ट्रू, हितेश भाई। और हितेश भाई, एक बात और, एक चीज और कहना चाहता हूं मैं दर्शकों से, आज जब हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिशियंस, देखिए मैं पहले भी एक बार बताया था कि पॉलिटिक्स कोई देश की सेवा नहीं होती है, पॉलिटिक्स एक करियर ऑप्शन होता है, पॉलिटिक्स का एक सिलेबस सिंपल। होता है, सिंपल। बीजेपी का एक सिलेबस है, कांग्रेस का एक सिलेबस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सिलेबस है, ठीक है, सब अपने अपने सिलेबस को फॉलो करते हैं, एक सिलेबस कॉमन रहता है, पार्टी का पावर में आना, ये सबका ध्येय होता है। इस ध्येय को पाने के लिए अगर सिलेबस समय के साथ रिन्यू करना पड़े, तो वो भी लोग रिन्यू करते हैं। जैसे शिवसेना का सिलेबस था हिंदुत्व, लेकिन उसने पावर में आने के लिए अपने सिलेबस को रिन्यू कर दिया, चेंज करो। क्योंकि पावर में आना उसका ध्येय था, ठीक है। तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके लिए पावर में आना सबसे बड़ी बात होती है, उनसे ट्रूथ, जस्टिस, इन सब की आप मांग करना बंद कर दीजिए, और वो हमेशा वो काम करते हैं जिससे अगले 5 साल वो दोबारा पावर में आ सके। बीजेपी में बस ये डिफरेंस है कि वो थोड़ी सी राइट विंग है, उसका अप्रोच थोड़ा सा नेशनलिस्ट रहता है, जनरली वो देश के नमस्ते। खिलाफ नहीं जाती है, बट हैं सबके सब पॉलिटिशियंस, और वो एंड ऑफ द डे। पॉलिटिशियंस इसलिए पावर में आते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स गिरी छोड़ दें तो आप उनको पावर से भगा देंगे, अगर वो सच के इश्यूज के लिए लड़ने लगे ना, तो जनता उनको पावर में लाएगी नहीं। जैसे बिहार में अगर मैं बेचने लगूं, हाईवे बनाऊंगा मैं, एजुकेशन लाऊंगा, वो बिकेगा ही नहीं वहां पे। बिहार को चाहिए जातिवाद, परफेक्ट कड़क जातिवाद एकदम। यादव वोट कितने हैं, भूमिहार वोट कितने हैं, ब्राह्मण वोट कितने हैं, दलित वोट कितने हैं, मुसलमान, इसी के बेस पे बिहार चलेगा। तो अगर मोदी जी जाएंगे तो भी वहां कास्ट पॉलिटिक्स खेलेंगे, क्योंकि नहीं खेलेंगे तो जीतेंगे ही नहीं। अरे भैया, दुश्मन जीत जाए इससे अच्छा मैं ही जीत जाऊं, यही सबकी आइडियोलॉजी होती है। तो बिहार में याद एक रखिए। बिहार में एक सेइंग होती है, कहावत है बिहार में, कि अगर आप जिस कम्युनिटी के मेजोरिटी एरिया से लड़ रहे हैं, उस कम्युनिटी का आप गधा भी खड़ा कर दोगे इलेक्शन में, और अपोजिशन में बहुत बढ़िया आदमी भी खड़ा कर दोगे, तब भी गधा ही जीतेगा। ट्रू, ट्रू, क्योंकि वहां जीतना उस कम्युनिटी के बेस में होता है, और यही मेंटेलिटी होती है ऑब्वियसली। और ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के अंदर नहीं है, ये सब कम्युनिटीज के अंदर है। सब आप कम्युनिटीज के अगर अंदर है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जाओगे, वहां पे शिया सुन्नी वाली बात हो जाती है, लेकिन बहुत आप ज्यादा, वो अरे बात बहुत हम नहीं ज्यादा देखते उनमें। हैं ना।
हाँ, हम हम देखते बोलते नहीं नहीं है है। क्योंकि, हाँ आपको लेकिन लगता होता है बहुत है जब मुसलमान, कि आप नहीं शादी होता। डॉट कॉम में देख लीजिए, शादी डॉट हाँ कॉम में हाँ। मुसलमान वाला एंगल खोल के देख लीजिए, कितनी जातियां आपको मिल जाएंगी वहां पे। वही बात है। अब ये तो है कि हम मेजोरिटी में दिखते हैं और हम ज्यादा आसान टारगेट है बोलने के लिए, तो बोलते हैं कि ये है। और एग्जैक्टली वही बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये तो बात हो गई बिहार की। और सेम चीज, एवरी स्टेट हैज सेम थिंग। एंड वन मोर थिंग, इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री जो जनता है वो थोड़ी सी देखिए दिमागी रूप से सच में पैदल है। इसको मानने में कोई बुराई, आप शर्म मत फील कीजिए। लेट्स एक्सेप्ट इट कि आप चाहे तमिलियन हो या आप चाहे उत्तराखंड के हो, कश्मीर के हो, आपको बेकार के टॉपिक जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। तमिल होंगे तो एंटी हिंदी टॉपिक्स, झूठ मूठ का वोट दे देंगे आप। कश्मीर है तो कश्मीरियत। थैंकफुली मैंने देखा है हितेश भाई कि अभी तक एंटी स्टेट फीलिंग उत्तराखंड जैसी जगहों पर नहीं आई है। वैसे तो वहां पे भी बेवकूफी भरी है पहाड़ों पर, लेकिन ऐसी फीलिंग जिसमें कि मैं स्पेशल हूं, तुम कुछ नहीं हो, जैसे मराठाओं में नहीं रहती है। एक्चुअली था ना, था ये हमारे से भी थोड़ा है, लेकिन वो अलग टाइप का। हमारे इसमें कुमाऊनी गढ़वाली वाला सीन है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्टली स्टेट ही के टुकड़े कर देंगे। हम स्टेट के टुकड़े करने में नहीं तुले, बड़ी मुश्किल से मिला है स्टेट एग्जैक्टली हमें। एग्जैक्टली एग्जैक्ट नहीं, मेरा हाँ वो कहने का मतलब था जैसे जैसे प्राइड होता है। आई डोंट नो कौन सा हाँ प्राइड हाँ, होता है वो ये ऐसा भाई। नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपने कौन सा बड़ा काम किया कि मैं आपको मराठा कहूं? क्या काम किया आपने अपने देश के वो डिपेंड पूर्वज? करता है। ठीक है, तो अब ये जो है कि बिहारी को भगाओ, तमिल को भगाओ, ये सब सस्ती पॉलिटिक्स में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। वी बिलीव इन यूनाइटिंग द कंट्री। तो आप हम्म फोकट का अगर फोकट का अगर आप मराठा मराठा कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आईएएस ऑफिसर बनिए। और उसमें कोई लॉजिक ये, ही नहीं है उस चीज में। इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब, देखिए आप समझ जाइए बात को। हाँ, अगर आपके वहां वो काम करने के लिए पहले कोई बैठा हुआ है, हम्म, तो दूसरा बंदे की वहां जरूरत ही नहीं है। ऑनेस्टली, वो पागल थोड़ी है कि अपना स्टेट छोड़ के आपके स्टेट में बसने आया है ऐसे काम के लिए जो उसे मिलेगा भी नहीं। तो ट्रू दैट ट्रू। तो इज इलॉजिकल थिंग। और एक बात और हितेश भाई, जो लोग कहते हैं कि यूपी बिहार के लोग नौकरियां ले जाते हैं, आपको समझना चाहिए यूपी बिहार के लोग नौकरियां नहीं ले जाते हैं। वो नौकरियां ले जाते हैं जिसको आप करने में वैसे भी शर्म महसूस करेंगे। जैसे ऑब्वियसली। लेबर का काम करना। आप में से कितने लोग हैं जो एस्पायर करते हैं कि वो लेबर बने? अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, उत्तराखंड में, क्या हमारा एम होता है कभी कि मैं बड़ा होकर लेबर बनूंगा? नहीं, हमारा एम ही नहीं होता है। हम उस काम के लिए एम ही नहीं करते हैं, और एक वॉइड क्रिएट हो जाता है लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में। उस काम को करेगा, उस काम को करने के लिए फिर वो लोग आते हैं जो एजुकेटेड नहीं हो। तो ये मत कहिए कि यूपी बिहार के लोग नौकरी ले जाते हैं, कोई नौकरी नहीं लेता है। वो वही काम एनीवे करते हैं जिस काम से कोई इज्जत नहीं मिलती है। पहली बात तो वो घर बनाते हैं। और जो दूसरी में नौकरी ले जाते हैं यूपी बिहार के लोग, अगर एग्जाम क्लियर करके, तो वो इतनी बड़ी ले जाते हैं कि भैया वो मेहनत से ही कुछ नहीं आती कर है। फिर सकते, अगर कोई वो आईएएस, कुछ नहीं कर वो सकते आईएएस उसमें बन, आप उसका। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एक ओपन हाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये हाँ। सब मत करिए अपनी। हाँ, तो पहली बात तो हितेश भाई, मैं पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं जो ये नया आजकल फैशन चल रहा है, मैंने गूगल करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है कि प्राइवेट जॉब उनके स्टेट में जितने हैं वहां पे 75% रिजर्वेशन लाने का प्रस्ताव वहां भी आ रहा है। ये प्रस्ताव हरियाणा में ऑलरेडी आ चुका है। तो हितेश भाई, अब मैं ये कहता हूं कि ये कहां तक सही है? 75% रिजर्वेशन लोकल्स के नाम पे दे देना, पॉसिबल। ये कहां तक सही है? एज लेट्स डिस्कस अदर एस्पेक्ट्स, पहले मेन एस्पेक्ट पे बात करते हैं आपकी नजर में। जैसे अगर कोई कंपनी या फिर कोई स्टेट है जो किसी कंपनी को इंसेंटिव देता है, जैसे मैं यहाँ पे, हमारे वहाँ सिडगुल प्लांट है, या फिर यूपी में हम्म, कोई नया प्लांट खुल रहा है, तो वो हम्म, लोग अगर मतलब कहें कि कंपनी आप सेटअप कीजिए, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, हम आपको प्रॉपर्टी बेनिफिट देंगे, या फिर ये बेनिफिट देंगे, उसके बीच में आप टर्म एंड कंडीशन डालें कि आप यहाँ पे 30-40% अपने बंदे को रखेंगे, क्योंकि आपको हम बेनिफिट दे रहे हैं, इसलिए बेनिफिट आपको दे रहे फायदा है। और इससे ये हैं। होगा कि हमारी लेबर का स्किल डेवलप होगा 5 साल में, ट्रू। क्योंकि इंडस्ट्री एकदम से हर किसी को समझ नहीं आती है, राइट। उत्तराखंड में जब सिडकुल आया था तो इंडस्ट्री नहीं थी, फिर हल्के हल्के करके यहाँ पे लेबर क्लास ज्यादा आ गया। अब यही हर जगह होता है, लेकिन इसका एक लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को इंसेंटिव दे रही है टू सेट अप अ प्लांट। दैट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बिकॉज आप उसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हो।
एंड इससे प्राइवेट कंपनी और उस स्टेट दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, राइट। लेकिन ये 30-40% तक समझ आता है। अब आप कहते हो कि हमारे वहां आप प्लांट डालोगे, आप 100% लेबर यहाँ से उठाओगे, अगर आप नहीं उठाओगे तो कंपनी बंद कर देंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है कि कंपनी मजबूर है, उसके पास वो स्किल लेवल का बंदा नहीं है, लेकिन उसे फिर भी उठाना आपके वहीं से है। जब आपके पास इंडिविजुअली स्किल है ही नहीं तो कंपनी कहाँ से उठाएगी। सेकंड, एग्जैक्टली। इंसेंटिव होता है 5-10 साल के लिए। 5-10 साल बाद इंसेंटिव कोई नहीं देता, कोई कंपनी से नहीं कहता कि 50 साल तक फ्री में तुम टैक्स मत दो और जो करना है करते रहो। वो 5 साल बाद कंपनी स्टार्ट पेइंग यू टैक्स, राइट। तो एग्जैक्टली। आपका ये रिजर्वेशन सिस्टम उस दिन खत्म हो जाना चाहिए जिस दिन आप कंपनी को इंसेंटिव देना बंद कर दो। क्योंकि अब कंपनी आपसे भीख नहीं ले रही है, कंपनी ने सेटअप किया, कंपनी ने आपके लोगों को 5 साल काम दिया, 10 साल काम दिया। अब आप उन्हें कोई फेवर नहीं कर रहे हो टैक्स कम करके, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आप उन्हें दे रहे हो। अब ये कहना, मैंने अगर प्राइवेट कंपनी अपनी डाल रहा हूँ, जैसे मेरा मन है मैं कंपनी डालता हूँ, मैंने डाल दी यूपी में, मैंने अपना पैसा खर्च किया, गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की, मैंने घूस खिलाई, जो भी किया, मेरी कंपनी डल गई। अब मुझे लेना है बंदा महाराष्ट्र का, बिकॉज मुझे पता है कि यार वहाँ पे एजुकेशन हब है, वहाँ बंदे को टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट मुझसे कह दे कि नहीं, तुम्हें आदमी काम वाला वही मिलेगा जो मैं कहूंगा, तो दैट इज समथिंग आई विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज गवर्नमेंट ने मेरी कोई मदद नहीं की है सेटअप करने में। इससे क्या होगा ना, 5 साल बाद जब मैं थोड़ा पैसा कमा लूंगा, मैं वो कंपनी करूंगा बंद और किसी और स्टेट में जाके बैठ जाऊंगा। एग्जैक्टली। तुमने 200 जॉबों के चक्कर में 5 लाख जॉबें छुड़वा दी किसी और की, बिकॉज तुम्हें लगा कि एक शॉर्ट टर्म पोल बेनिफिट है। ट्रू। मैं यही बताता हूँ। होता है। वेरी ट्रू। अब देखिए पॉलिटिशियन के यहाँ देखिए, जनताओं से, जनता जनार्दन से मेरा रिक्वेस्ट है, इस बात को गौर से सुनिए कि पॉलिटिशियन अगर एक बड़ा काम करे कि सबको स्किल डेवलप करना, आईटीआई में सबको भेजना, सबको फ्री टेक्निकल एजुकेशन देना, तो इस काम को करने में गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हम्म, और जब तक रिजल्ट आएंगे तब तक शायद 5 साल बीत जाए और उसकी सरकार भी गिर जाए। तो कोई भी सरकार क्या करती है, एक शॉर्टकट खेलती है। सरकार क्या करती है, शॉर्टकट खेलती है। वो बड़ी चीजी ल्योरिंग चीजें जनता को देती है। रिजर्वेशन, 75% रिजर्वेशन तुमको मिलेगा। अब इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगी 1 साल के अंदर। तो इससे क्या होगा कि अगले 5 साल सरकार के बने रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सरकार यहाँ पे शॉर्टकट खेलती है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनता, ह्यूमन रिसोर्स में नहीं करना चाहती है, और शॉर्टकट अपनाती है कि कैसे कैसे मुझे जल्दी से जनता को खुश कर दूं, बाद का बाद में देखा जाएगा। अब एक बात बताइए, हरियाणा में अगर मैं फरीदाबाद और गुड़गांव को हटा दूं तो उसमें क्या बचा। हरियाणा की जनता आज भी वो जनता है जो कहती है कि छोटे कपड़े लड़कियां पहन के बाहर जाती हैं इसलिए उनका रेप होता है। ये आप वीडियोस में देख चुके हैं, नहीं देखा तो आप अपने घर में पूछ लीजिए, ऐसा ही होता है वहां। ये वैसे भारत के बहुत गांव में होता है, लेकिन हरियाणा में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स और ज्यादा कंजर्वेटिज्म है। थोड़ा सा कॉमन ज्यादा है। बताइए, अगर आपने देखी होगी कौन सी जगह, मेवात, मेवात जैसी युवाओं को गुड़गांव जैसा सेक्टर कहां पे एम्प्लॉय करेगा, आप मुझे बताइए। अगर 75% जबरदस्ती मुझे हरियाणा से लेना पड़े, एम्प्लॉय करूं कैसे। अरे भैया, मुझे आईटी डेवलपर चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, मुझे ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर चाहिए, कहां से मिलेगा मुझे। तो 75% रिजर्वेशन देना मतलब अब क्या होगा, अब आप सेक्टर में ऐसे लोगों को डालेंगे जो स्किल्ड नहीं है, और जो स्किल्ड नहीं है फिर वो ओवरऑल प्रोडक्शन जो है कंट्री का, उस प्रोडक्शन को पुल डाउन करेंगे, वो उस प्रोडक्शन को पुल डाउन करेंगे। इससे क्या होगा, पूरे देश का नुकसान होगा। और यही चीज हितेश भाई, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, अगर हर स्टेट ऐसा करने लगे, मेरा स्टेट बहुत दिक्कत मेरा हो स्टेट, जाएगी। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले डेमोग्राफी। आज याद रखिए, अगर बिहार कहे कि मैं मगध साम्राज्य बनना चाहता हूं, तो पता उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा, मेरे जैसे बिहारी खड़े होंगे जिनका जन्म बिहार में हुआ लेकिन वो पले बड़े उत्तराखंड में। मेरे जैसे लोग खड़े होंगे, क्यों, क्योंकि मैं जन्मा भले बिहार में हूं लेकिन मेरे अंदर संस्कृति उत्तराखंड की है। तो मैं देश को एक रखने में यकीन रखता हूं, और मैं कभी भी बिहार की इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं जाऊंगा कि मुझे अलग मगध साम्राज्य बनाना है। ये चीज तब आती है जब डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है, जब बिहार का इंसान महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्र का इंसान उत्तराखंड में रहे, उत्तराखंड का इंसान तमिलनाडु में रहे। ये चीजें तभी पॉसिबल हो सकती हैं, और तभी ये देश
रुक सकता है, जुट सकता है एक साथ। अगर मैं हर तमिलियंस को निकाल के तमिलनाडु में रख दूं, तो याद रखिए तमिलनाडु को अलग देश बनने से कोई रोकेगा ही नहीं। प्लेबिसाइड होगा, सब उसके फेवर में ही करेंगे। आज भी अगर कश्मीरी पंडितों को आपने जब कश्मीर से हटा दिया हितेश भाई, आज अगर आप प्लेबिसाइड करवाएं कश्मीर में कि कश्मीर को एक अलग मुल्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? हम हार जाएंगे ना, हम वो हारेंगे ही। वही तो लॉजिक था, लॉजिक ही वो था उस जेनोसाइड का। वही आज वो तो कहते लॉजिक हैं कि था। वोटिंग कर लो, वोटिंग कर लो, हाँ, लेकिन जब कश्मीर में वो लोग हैं ही नहीं जो कश्मीर के थे, तो अब वोटिंग क्यों? एग्जैक्टली। वोटिंग 40 साल अब तो पहले आप क्यों नहीं जीत ही की गई? जाएंगे वोटिंग में। हाँ। एग्जैक्टली तो बड़ा प्लान आपको सोचना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म ऐसे 50 साल बाद देखना पड़ेगा कि देश कैसे टूट सकता है इन छोटी छोटी गलतियों से। आज अगर बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सिर्फ अपने अपने लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देने लगे हैं, तो क्या होगा? याद रखिए, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली जैसी जगहों को वहां के लोगों ने नहीं, ऐसी जगह है जिसको देश ने बनाया है। मुंबई को राज ठाकरे ने नहीं बनाया है, मुंबई को अंग्रेजों ने, बड़े बड़े लोगों ने पहले से बनती आ रही यार। वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मुंबई पे किसी का हक नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का। अगर आप ध्यान से देखें तो बंबई हो गई, नहीं, चेन्नई हो गई, पीटी जी ने दिल्ली एक हो बड़ी गया। अच्छी बात बोली कि 25% में तो सर वैसे सारे स्किल्ड लेबर जो होते हैं वो 25% में आ जाएंगे। तो उसके बाद जो 75% रिजर्वेशन वो देने में क्या दिक्कत है? वो 75% से उनका स्किल बढ़ेगा बाकी लोगों का, राइट? लेकिन प्रीति ऐसा होता है ना कि आप लाइफ में शिफ्ट करना चाहते हो कई बार, मतलब बहुत लोग होते हैं जो शिफ्ट करना चाहते हैं, जिन्हें मजबूरी होती है, कोई वैसे शिफ्ट होता है या फिर कोई वजह होती है स्पेसिफिक जिसमें आप अपनी जगह में नहीं रहते हो। ह्यूमंस की टेंडेंसी सेटल होने की है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि वो हमेशा सेटल रहते हैं, राइट? छोटे शहर का बंदा बड़े शहर में जाने का हक रखता है, बड़े शहर का बंदा छोटे शहर में आता है, दैट इज अ थिंग। आप अगर लोकलाइज कर दोगे ना सिस्टम को तो बहुत इशू हो जाएगा, क्योंकि लोकलाइजेशन से क्या होता है, आप एक जगह में बंद कर देते हो किसी को, आप अपना कल्चर स्प्रेड नहीं कर पाओगे, आप इस लॉजिक से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, इस लॉजिक से आप बातचीत नहीं कर पाओगे, आप उस सोसाइटी का डेवलपमेंट उस ढंग से नहीं होगा जिस ढंग से होना चाहिए। और देश तो एक ही है, आपका देश एक ही है, आपको हर जगह रहने का परमिट है। क्या आप एक लोकलाइज पॉपुलेशन के साथ रह सकते हो? अगर रह सकता तो यूरोप ऐसा क्यों करता कि वो ओपन बॉर्डर्स घोषित कर देते? बिकॉज उन्हें भी पता है कि लोकलाइजेशन के भी अपने इश्यूज होते हैं, और एक टाइम बाद सब लेबर जो वहां पे होंगे उनमें से आधे ज्यादा एग्री हो जाएंगे या फिर ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो दे विल नॉट वर्क फॉर दैट कॉस्ट। अब बिहार से अगर आदमी आके 200 रुपये में काम करता है और मुंबई में आदमी कहता है मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो दैट इज द वे आप प्राइसेस कम रखते हो, आप अपनी चीजों को बैलेंस आउट करते हो, राइट? आप अगर, वरना कैलिफोर्निया वाला हाल हो जाएगा आपका। कैलिफोर्निया में टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, लोगों ने वहां पे, वहां सैलरी $60,000 है, लेकिन आप 1 रुपया सेव नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज एन इशू। और बिहार दूसरा स्टेट मान लीजिए कोई छोटा सा, जहाँ पे आप 25,000 में जिंदगी काट दे रहे हो। सो ट्रू ट्रू। दैट डिस्पैरिटी विल इंक्रीज इफ यू स्टे लोकलाइज्ड। सेकेंडली, आप अगर सिर्फ 25% रखते हो तो आप एक कैलकुलेटर लेके कंपनी नहीं बैठी रहेगी कि आज मेरे बंदे एग्जैक्टली। कितने कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर लॉन्ग टर्म। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर बहुत ज्यादा होती है बड़ी इंडस्ट्रीज में, आप हर किसी का कार्ड चेक नहीं कर सकते, आपका स्टेट कार्ड इशू नहीं होता है, आपका एक नेशनल कार्ड इशू होता है, राइट? आप इंडिया के सिटीजन है, आप उत्तराखंड के सिटीजन नहीं है, आप इंडिया के सिटीजन है, राइट? सो 20-30% आई अग्री कि आपको पॉपुलेशन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपका स्टेट इतने रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, मैं प्राइवेट बिजनेस होना कभी नहीं आऊंगा आपके स्टेट में, बिकॉज मुझे पता है कि लेबर लेने में मेरे लग जाएंगे और मेरे गंदे एग्जैक्टली। लग जाएंगे। कल आप यूनियन एग्जैक्टली। फॉर्म कर लोगे, 10,000 लोगों की जो एक स्टेट में काम करते हैं, और आपका घर वहीं पे होगा, मैं क्या कर लूंगा एज अ कंपनी ओनर? मुझे बंद करना पड़ेगा, मेरा 3-4 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा एक कंपनी सेटअप करने में। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि 3 साल बाद मैं वहां से चले जाऊं। ये एक बार हो चुका है, ये ममता बनर्जी मैडम ने किया था तो टाटा के साथ, जब उन्होंने वो जमीन का घपला किया था, तब से कोई कंपनी वेस्ट बंगाल नहीं गई है, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी जहां लॉस खा रही है, वहां छोटी कंपनी क्या टिकेगी? उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। और फिर वही लोग जॉब्स के लिए दूसरे स्टेटों में आके कहते हैं कि हमें जॉब्स चाहिए। जब आपका स्टेट ने कंपनी सेटअप नहीं होने दी, तो अब आप दूसरे स्टेट में आके जॉब्स कैसे मांग सकते हो? दैट इज स्टूपिड पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन का बेटा कभी भी कंपनी में काम नहीं करने वाला भाई, वो ओन करेगा, उसका नहीं होने वाला कुछ। तो ऐसे फालतू चीजें मत सोचो। 20-30% तक आई कैन सपोर्ट कि चलो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आप कर रहे हो, लेकिन 70-80-90% तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पहुंच गए हो आप, इवन विद कास्ट बेस्ड।
और कल कोई करेक्ट कह करेक्ट देगा करेक्ट। कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे दो प्राइवेट कंपनी में, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट? ये दिस भी इज द होगा। स्टुपिडिटी लेवल। ये ये हुआ है, ये जो मुफ्तखोरी की जो आदत है ये जाएगी नहीं हितेश भाई, ये एक ये हो दिन चुका है। प्राइवेट सेक्टर को भी ममता खा जाएगी। ये यूपी बिहार में हुआ है। आई थिंक मायावती जी ने बात रखी थी पार्लियामेंट में कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो प्राइवेट कंपनीज पे भी लगाया जाए, लेकिन दैट वाज नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्सेप्टेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज में गवर्नमेंट का ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होता है कि आप उनसे हम्म। ऐसे जबरदस्ती कर सकें। बट दिस इज अ लेवल ऑफ ट्रू ट्रू ट्रू। स्टुपिडिटी जो होते रहेगी। कांग्रेस क्यों जीती 60 साल इलेक्शन यार? सिंपल सी बात है, 30% पे रिजर्वेशन स्टार्ट किया, हर साल इलेक्शन आया, 2% तुम्हें, 3% तुम्हें, एग्जैक्टली। आप 55 हो हर गया, आप साल कुछ कर बढ़ाती नहीं रही। सकते हो तो कह दिया। तो दैट इज अ लॉजिक। नेता और आपका भला इमेजिन, करने के लिए नहीं बैठे हैं। एग्जैक्टली वो वही मैं कहा उनका अपना काम है। और एक बात और हाँ, हितेश दैट भाई, इज ट्रू। आज इमेजिन कीजिए, आज बैंगलोर जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है ना। आज अगर कर्नाटका गवर्नमेंट भी यही कर दे कि 75% बस लोकलाइज लेंगे, पता है मेरे भी कितने क्लासमेट है उत्तराखंड के हैं जो आज बैंगलोर में काम कर रहे हैं, कितने दिल्ली हाइट हैं जो बैंगलोर में काम करते हैं, कितने मुंबईकर्स हैं जो बैंगलोर में काम करते हैं। अगर ऐसे घटिया घटिया प्रस्ताव हर इंपॉर्टेंट स्टेट अपने स्टेट में लिया तो पहला पता क्या होगा, पहला तो उस स्टेट की इंपॉर्टेंस वहीं से गिरनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, वो होता है। इसका नुकसान होता है। दूसरा, हम्म। इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ेगा भैया। मेरा उत्तराखंड का जो जितने रावत हैं, निगी हैं, जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो डीआईटी से पढ़ के निकले हैं, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट से निकले हैं, किस लिए निकले थे वो पहाड़ों पे काम करने के लिए नहीं निकले थे। वो इसलिए निकले थे ताकि गुड़गांव जाएं, नोएडा जाएं, बैंगलोर जाएं, और वहां पे जाके भैया इंजीनियरिंग करें। वहां पे जाके वो इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, एमबीए करें। तो रीजनलिज्म को देखिए, आपको थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा ये, शुरू शुरू में। मैं आपको मानता हूं ये एक नशा होता है। 75% का लालच जो है ना, आपको शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देश को तोड़ देगा। इस बात को आप लिख के ले लीजिए। ये रीजनलिज्म जो है, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही घातक होता है। कोई दिल्ली में गया है? दिल्ली मतलब कोई रहा है दिल्ली में तो मुझे एक्सप्लेन समझ पाएगा। दिल्ली में एक बड़ा ही बेकार सिस्टम है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे हॉस्पिटल एक कोने में है, पढ़ाई का एजुकेशन एक कोने में है, और एक कोने में कुछ और है, कुछ चीजें बिल्कुल अलग मिलती है, कपड़े बिल्कुल एक अलग कोने में मिलते हैं। तो दिल्ली थोड़ा ऐसे करके डिविजिव है कि वो जॉब बेस पे डिविजिव है। कहीं पे हॉस्पिटल होंगे तो कोई एरिया हॉस्पिटल को डिवाइड को होगी, कहीं पे पढ़ाई के होंगे तो सब जगह पढ़ाई का ही सामान मिलेगा। ये सबसे बड़ा इशू दिल्ली के साथ मुझे है, क्योंकि अगर मुझे पेंसिल लेने जाना पड़ता है तो मुझे वहां से लाजपत नगर जाना पड़ता है, या फिर कुछ मतलब एजुकेशन के सामान के लिए वहां जाना पड़ता है, और ये इशू है। अब आप सोचिए कि यही अगर होमोजेनियस होता कि हर जगह में हॉस्पिटल भी हो, हर जगह में पेंसिल भी मिले, हर जगह में सब कुछ मिले, तो दैट वुड बी इवन सो मच बेटर। क्योंकि आपको एक तो कंपटीशन कम हो जाता, क्योंकि हर वेंडर अगर एक जगह बैठेगा तो बिजनेस से 10-15 को ही मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। अब वो हर जगह फैल जाते तो दैट वुड हैव बीन सो मच बेटर। दिल्ली के लोगों के लिए भी सहूलियत होती और बेचने वाले को भी प्रॉफिट होता। तो ये इश्यूज हर जगह होते हैं, लेकिन आप रीजनल बेसिस में मत फंसिए। मई स्टेट की गवर्नमेंट ने भी ये किया था, सबसे बेकार स्कीम है, बहुत ही फुद्दू चीज है। अच्छी बात है, आप चाहते हो कि आपका बंदा डेवलप करे, लेकिन आपका बंदा खुद वहां नहीं रहना चाहता तो कंपनी क्या करे? कंपनी छोड़ दे क्या? कंपनी अपना स्टेट छोड़ के चले जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको समझना पड़ेगा वो बातों को। और हितेश भाई, स्टेट को आगे बढ़ाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, पढ़ाई लिखाई, स्किल को बढ़ाना, आईटीआई बढ़ाना, कुछ सिखाना लोगों को। ये तरीका होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट के स्तर तक मैं पहुंचा दूं, कि हम्म। आपको उत्तराखंड में जॉब मांगने की आवश्यकता ना पड़े, आप जहां जाएं आप रेडिली ऑब्जॉर्व कर लिए जाएं। तो ये होता है वही स्किल बात होती है। डेवलपमेंट। और सही जबरदस्ती बात है। कंपनी का स्टैंडर्ड आपके लेवल पे गिरा देना, कि इनको जो भी आता है, जैसा भी आता है, लेकिन तुमको तो लेना पड़ेगा। ये हमारे देखिए, वहाँ ये यही इश्यू है, वैश्विक हम किसी को आगे बढ़ाने के लिए ना उसे धक्का नहीं देते हैं, हम दूसरे का पाँव पकड़ लेते हैं, कहते हैं पाँव तू नहीं पकड़ लेते हैं। चलेगा, ताकि वो हम्म। पीछे से आ सके। तो दैट इज अ स्टूपिड एग्जैक्ट। मेंटेलिटी। आपको दूसरे को खींचना चाहिए, उसे धकेलने की जगह। आप कंपनीज को आप अगर सपोर्ट करोगे, मतलब मैं तो खुद ही एंटरप्रेन्योर हूँ, अगर कल से आके कोई कंपनी लगा देगा कि मैं टूरिज्म का बिजनेस है मान लिया, तो अगर करेक्ट। कोई आके कहेगा कि 70% टूरिस्ट सिर्फ इस स्टेट का होगा, बाकी 30% बाहर से आएगा, तो उत्तराखंड वाला बेवकूफ थोड़ा जैसे पहाड़ देखेंगे 70% पहाड़ देखने के लिए फिर घूमेगा। ऑब्वियसली पहाड़ देखने का मन उसे होगा जो दिल्ली में रहता है।
उसका ज्यादा मन होगा। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी ना, आप किसी इंडस्ट्री को लिमिट मत करो ऐसे फालतू चीज।